बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टाफ अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, और उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमें करना है, नहीं करना, या कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो क्या करना है। तो सजग रहने के लिए बहुत सारी बातों का जानना जरूरी है। ये हमारी इस कमेटी का उद्देश्य भी है और उसका एक प्रमुख टॉपिक भी है। तो आज इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के आखिरी दिन के आखिरी सेशन में हम इसी विषय पे बात करेंगे, और इस विषय पे बात करने के लिए हमने प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति मिश्रा को इनवाइट किया है। तो मैडम प्रोफेसर मिश्रा, आपका हमारे संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सभी की ओर से मैं आपको वेलकम करती हूँ इस संस्थान में। थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि मैम ये पहली बार यहाँ पर आई है, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को पहले मैडम के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मैम का एक्चुअली बायोडेटा तो बहुत काफी बड़ा है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी उनके बारे में। तो प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति मिश्रा, शी इज प्रेजेंटली वर्किंग एज डीन स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स at Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. She has done her postgraduate in economics and then LLM from Lucknow University. She has been the coordinator of Department of Law, School for Legal Studies in BBAU. Madam has specialized in criminal justice administration and she did her LLD on domestic violence against women in India in 2004 from Lucknow University. Her major interests lie in the field of women and gender issues, ethnic minority, marginalized section of society, human rights of rural and urban poor, family violence, environment, HIV, AIDS, criminal justice administration, victimology, and other development issues concerning about human rights law. Madam has around 22 years experience in university and college teaching. She has more than 116 research papers to her credit. She has presented more than 100 papers in different national and international seminars and conferences. Already she has guided 9 PhD students under her able guidance, and 4 are presently enrolled under her. She has been a guest faculty in MBL, MLPM and law honors programs of Lucknow University. She has delivered more than 90 invited talks and lectures on different socio-legal issues in different universities, at legal aid camps, on live radio talks, in phone-in programs, international seminars and conferences, etc., to name a few. Ma'am has received several certificates of excellence and honor for her academic distinctions. Her publications on domestic violence against women, legal control and judicial response. Another publication, textbook on Indian Penal Code. Another on law related to protection of women, cases and material. These are all the publications that have received overwhelming response from academic, non-academic and judicial field. She is a member of various administrative and academic bodies of not only BBAU, but of other universities and academic bodies of national and international repute. Ma'am, with this, we welcome you to this capacity building program, and over to you, ma'am, for your talk. Thank you. She will be speaking on prevention, prohibition, and redressal of sexual harassment of women at workplace. Over to you, ma'am. Okay, thank you, Sangeeta. Thank you so much. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay. So let me first thank the organization for having me here on this talk, and it's a quite pleasure to be with you all. I will be talking upon this act which is usually known as POSH, though the full form of the act is the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. To begin with, you all must be aware of very high profile cases of sexual harassment. That is Tarun Tejpal case, who was the MD of the Tehelka magazine, and he was accused of the sexual harassment by a staff member. Then we had the very high profile case of Justice A.K. Ganguly, who was accused of sexual harassment by his own intern. And you all know what was the fate of that case. That lady could not get the justice, though the case was against the judiciary only. So there have been these kinds of high profile cases. So now the thing is that no longer the men are only the breadwinner for the family. Now women are also working in many sectors, not only in organized sector but also in unorganized sector.
and under the flag of this globalization, the women are made to work in various quarters of life where they are facing lots of problem, because so far as the government institutions are concerned, the facilities are there, but the private institutions, most of the rules are not at place. So because of that also the women are facing lots of problem. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में न केवल पुरुष काम कर रहे हैं बल्कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, और इस काम के दौरान जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्यस्थल है, वहाँ पे महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, टू द एक्सटेंट दैट सम टाइम दे आर फोर्स टू फेस द सेक्सुअल वायलेंस। कभी कभी उनको यौन हिंसा का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। तो जहाँ तक यौन हिंसा का सवाल है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का सवाल है, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, all over the world, even in most developed countries of the world, we all know that these cases take place, and you all know about the Me Too movement that started and that brought out the skeleton from the cupboard। ये बहुत बहुत पुराने केसेस भी उसमें सामने निकल करके आए कि कैसे महिलाओं के साथ जो है वो यौन हिंसा होती है। और एक स्टडी की गई थी राही की 2007 में, जिसमें पाया गया था कि इफ यू टॉक अबाउट द सेक्सुअल अब्यूज एट द चाइल्डहुड लेवल, तो 3 में से 1 बच्चा या बच्ची जो है कहीं ना कहीं वो यौन हिंसा का शिकार होती है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर दिन सभी को फेस करनी पड़ती है। आई वुड नॉट से ओनली द विमेन, men as well as the women are facing this problem of sexual harassment, girl child as well as a male child is also facing this problem of sexual abuse or the sexual harassment. But here we are more concerned with the problem of sexual harassment at the workplace. तो अगर इन वर्क प्लेस पे भी हम हरासमेंट के केसेस को देखें तो दिन प्रतिदिन इनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो NCW ने दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जो आयोग है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, उन्होंने 1998 और 1999 में एक स्टडी करी थी सिर्फ ये जानने के लिए कि कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ जो यौन हिंसा हो रही है उसका क्या प्रतिशत है। तो ये सामने निकल करके आया कि मतलब इतना पुराना डेटा है 1999 का, उस वक्त जब ये डेटा लिया गया तब भी जो है वो 46.58% वुमेन जो थी दे वी आर फेसिंग हैरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क। तो यानी कि मोर देन 50% वुमेन आर फेसिंग दिस काइंड्स ऑफ वायलेंस। और उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, एक रिपोर्ट में जो सामने निकल करके आया NCW की, उसमें कहा गया कि द वुमेन फेस द मेंटल हैरासमेंट विच वॉज कास्ड बाय द विसलिंग, विंकिंग, passing of lewd remarks, singing of obscene songs, abusing and unnecessarily using sexual gestures and all। तो इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ की कोई डेफिनेशन जिस वक्त नहीं थी सेक्सुअल हैरासमेंट की, एज सच उसको वर्क प्लेस पर डिफाइन नहीं किया गया था, उस स्थिति में भी जब स्थिति की इस बात का आकलन किया गया कि महिलाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि कार्यस्थल पर हमारी जो सोशल अपब्रिंगिंग है, जहाँ पे किसी तरीके से दूसरे पक्ष को सिखाया ही नहीं जाता है कि उन्हें लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना है। तो men are also at liberty, they use any kind of language, any kind of remark so far as the attire of woman is concerned or the looks of the women are concerned। तो चूंकि सोशलाइजेशन में ही नहीं सिखाया जाता है कि हमें दूसरे जेंडर के साथ किस तरह का बिहेवियर करना है, तो कहीं कहीं हमारे वो नेचर में आ जाता है कि वी फील फ्री कि किसी भी तरह का कोई कमेंट कर रहा है, किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, और ऐसे में अनवांटेडली और अनइंटेंशनली भी ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं जो कि दूसरों के लिए हैरेसमेंट कॉज कर सकते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं समस्याएं रही हैं हमारे समाज की। और अगर हम कुछ इलस्ट्रेटिव केसेस इसमें देखना चाहें उदाहरण के तौर पे, तो एक बहुत फेमस केस था जो कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास आया था। यहाँ पे एक्चुअल नाम ना लेकर के एक फैब्रिकेटेड नाम यूज किया गया था, जिसमें ये था कि वो जो महिला थी वो अपने ऑफिस में जो उसके फॉर्म के सीनियर पार्टनर्स थे उनसे सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो फेस कर रही थी। और जब उसने अपना अटेंशन ड्रॉ किया अथॉरिटीज का इस मिसकंडक्ट की तरफ, तो उल्टे उसको ही जो है वो शी हैड टू बेयर द बर्न्ट ऑफ इट एंड उसको प्रमोशन नहीं दिया गया और उसके जो क्लाइंट थे वो उससे ले लिए गए। तो इस तरह से जो महिलाएं अगर सामने भी आती हैं और अपना रिपोर्ट सामने रखती हैं कि हमारे साथ इस तरह का हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसको पॉजिटिवली भी नहीं लिया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि इट इज नॉट ओनली इंटरसेक्स प्रॉब्लम बट इंट्रासेक्स प्रॉब्लम ऑल्सो। तो अगर विमेन बॉसेज हैं तो कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा सिंपैथिक महिलाओं के लिए नहीं होती हैं। तो इस तरह के जो केसेज हैं वो कोई आइसोलेटेड केसेज नहीं है जहाँ पे कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है, तो बहुत सारे ऐसे कॉमन केसेज हैं।
एंड यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द केस ऑफ रूपल देव बजाज, जो कि IAS ऑफिसर थी, जिनको उनके ही सीनियर जो थे KPS गिल साहब, जो कि पुलिस में ही थे, उन्होंने उनका जो है वो एक पार्टी में उनके साथ जो है वो इनडिसेंट बिहेवियर किया था. तो रूपल बजाज वेंट टू द कोर्ट एंड शी गॉट द रेमेडी ऑल्सो फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. तो वहाँ पे चूंकि उस वक्त कोई ऐसा एक्ट नहीं था जहाँ पे कि वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट को डिफाइन किया जाता. तो वहाँ पे जो हमारा IPC है, जो भारतीय दंड संहिता है, उसकी जो धारा 294 है और सेक्शन 509 है, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है और ऑब्ससिनिटी है, उन धाराओं के अंतर्गत KPS गिल जी को जो है वो पनिशमेंट दिया गया था और उनको 2.5 लाख रुपए फाइन भी देना पड़ा था. इसके अलावा रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी उनको दिया गया था. इसके अलावा एक और फेमस केस था 1995 का, राधा भाई वर्सेस D रामाचंद्रन. जो राधा भाई जी थी वो सेक्रेटरी थी रामचंद्रन जी की, जो कि सोशल मिनिस्टर से फॉर द स्टेट. तो उनके खिलाफ इस तरह के चार्जेस थे कि जो शेल्टर होम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे महिलाओं का जो है उनके द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है. तो जब राधा भाई जी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उल्टे उनका ही मॉलेस्टेशन किया गया और बाद में उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया. तो जहाँ पे महिलाएं इस तरह का हैरेसमेंट फेस कर रही हैं और सामने आकर के बातों को कहना चाहती हैं, वहाँ पर उल्टे उनको और भी ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है. कभी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, कभी उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनका प्रमोशन जो ड्यू है वो प्रमोशन नहीं दिया जाता है. तो इस तरह के तमाम तरह के जो है, एक तो फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर है ही, साथ में उनको मेंटल हैरेसमेंट भी वो सहना पड़ता है. तो अगर हम इस संदर्भ में NCRB का डेटा देखें, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो वो भी 2014 से स्टार्ट किया है NCRB ने डेटा देना सेक्सुअल हैरेसमेंट का. और यहाँ पर भी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो कि FIR के द्वारा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनका जो रजिस्टर्ड FIRs हैं, वो जो केसेस हैं वो सेक्शन 509 के अंतर्गत ही उनको लिया जा रहा है. तो अभी भी हम देखें तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो डेटा इकट्ठा कर रहा है, या तो वो सेक्शन 354 जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, IPC है, इंडियन पेनल कोड है, विच डिफाइन द आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसके अंतर्गत, या 509 ऑफ IPC दैट रिलेट्स टू द क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उसके अंतर्गत ही डेटा हमको दे रही है. तो जो 2013 के बाद क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स हुए निर्भया केस के बाद, और जो नया सेक्शन जोड़ा गया भारतीय दंड संहिता में, सेक्शन 354A दैट डिफाइन द सेक्सुअल हैरासमेंट, उसके अंतर्गत अभी भी हमको अलग से कोई सेपरेट डेटा नहीं मिलता है. तो NCRB ने जो डेटा प्रस्तुत किया है रिगार्डिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, उसमें अगर हम देखें तो लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है. तो 2016 में 539 केसेस थे, 2017 में 570, 2018 में 965 केसेस आ गए. उसके बाद जनवरी 2019 का डेटा बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं था, केवल जो जनवरी 19 तक के केसेस हैं 2019 के, उसमें 29 केसेस थे. लेकिन जो 2020 का डेटा आया उसमें 1009 केसेस जो मिले वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे. और इसमें भी एक एस्टोनिशिंग फैक्ट था कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस मिले सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस के. तो जो संख्या है हैरेसमेंट की एट द वर्क प्लेस वो लगातार बढ़ रही है. और जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि तो अच्छी बात है कि जो है केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं अब खुल करके सामने आ रही हैं. इट इज़ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ शेम फॉर देम. पहले होता था कि महिलाओं के खिलाफ ऑफेंसेस हो रहे हैं तो खुद शर्म महसूस करती थी और उसको बोलने के लिए सामने नहीं आती थी. लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, साथ में मीटू मूवमेंट का जो असर हुआ, अब महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे यौनिक हिंसा के प्रति भी जागरूक हैं. और नाउ दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ नो टॉलरेंस, कि अब हमें सहना नहीं है, जो कोई हमारे साथ गलत हो रहा है उनको आगे आकर के जो है सामने उसको लाना है और अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है. So now in this scenario, let us understand what is the meaning of sexual harassment. यौनिक हिंसा का मतलब क्या है? तो it is the unwelcome sexual gesture or the behavior, whether direct or indirect, such as sexually colored remarks, physical contact and advances, showing pornography, a demand or request for the sexual favors, or any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct being sexual in nature. तो इसमें जो क्रिटिकल फैक्टर है, जो ध्यान देने योग्य बात है कि जो बिहेवियर है जो अदर जेंडर का, जो दूसरा पक्ष है या जो मेल पार्टी है, कि जो भी उसका व्यवहार है वो बहुत ही अनवेलकम है. यानी कि महिलाओं के द्वारा वो उसका जो व्यवहार है वो स्वागत योग्य नहीं है. कहीं ना कहीं उसको जो उनका जेस्चर है, उनका जो बिहेवियर है,
या जो उनके एक्ट हैं या ओमिशंस हैं, उसे कहीं ना कहीं महिलाओं को अनकंफर्टेबल जो है वो फील होता है। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं या इस तरह का कुछ पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपस में बैठ करके, जहाँ पे महिलाएं चार इकट्ठा हैं वहाँ पे बैठ करके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं इंटेंशनली, पता है कि आसपास महिला है, तो इस तरह का जेस्चर्स अगर दिया जा रहा है तो ये सारी चीजें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। और जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग बिकॉज इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अ वुमन। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, और जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो सब हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर आवर ह्यूमन राइट्स। तो अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं के साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं दे आर बीइंग डिनाइड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। तो जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है हमारे भारतीय संविधान का, उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। और पहली बार यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो 1997 में आया और जहाँ पे पहली बार सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया। वहां से ये समझा गया कि न केवल 14, 15 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार है उनका वायलेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, बल्कि जो आर्टिकल 19(1)(g है जो कि इस बात की स्वतंत्रता देता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो महिला अगर कोई कार्य करना चाहती है अपनी जीविका को चलाने के लिए और इस हैरेसमेंट की वजह से अगर उसको सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, या एनवायरनमेंट अगर हॉस्टाइल है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेक्सुअल ल्यूड रिमार्क्स, तो कहीं ना कहीं वो इसकी जो राइट टू वर्क है, टू अर्न हर लाइवलीहुड, उसका भी कहीं ना कहीं वो उल्लंघन हो रहा है, उस फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा है। तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग विच नॉट ओनली डिवाइड अ वुमन ऑफ हर ह्यूमन राइट्स बट ऑल्सो ऑफ हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो विशाखा वाले केस में विशाखा आप सभी जानते हैं कि एनजीओ के थ्रू एक केस फाइल किया गया था। भंवरी देवी एक लेडी थी जो साथिन संस्था में काम कर रही थी राजस्थान में, जो कि सोशल वर्क में इन्वॉल्व थी, और वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए गई थी। तो वहाँ पे जो हायर कास्ट के लोग थे उन्होंने उसके पति के सामने ही उसके साथ रेप किया था और उसको ह्यूमिलिएट किया था। देन दिस विशाखा दैट वाज एन एनजीओ दैट फॉट फॉर हर राइट्स। तो वहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आया तब ये समझा गया कि ऐसी कोई परिभाषा ही हमारे पास नहीं है जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हो रही प्रताड़ना को या यौनिक हिंसा को डिफाइन करती हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसमें जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसके अलावा अदर जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी स्टडी करते हुए पहली बार सेक्सुअल हैरासमेंट को एट द वर्क प्लेस डिफाइन करने की कोशिश की। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन किया उसमें यही चीजें थी कि द सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस शोइंग द पोर्नोग्राफी, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट विच इज ऑफ सेक्सुअल इन नेचर। So this was a landmark case in the sense that for the very first time here the sexual harassment was identified as a separate illegal behavior. वैसे क्या था कि आईपीसी में हमारी जो भारतीय दंड संहिता है वहां पे तो ऑफेंसेस ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे 354 है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, लेकिन जो मॉडेस्टी वर्ड है उसको कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। वहां पर भी कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जहाँ पे कि मॉडेस्टी को डिफाइन किया गया है, लेकिन वहां पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि किस बात को मॉडेस्टी समझा जाएगा। तो कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी कि सेक्सुअल हैरासमेंट किसको माना जाए या आउटरेजिंग और मॉडेस्टी किसको माना जाए। इसी तरीके से जो 509 है वहां पे जो जेस्चर्स है या शोइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है विच में अपियर ऑब्सीन टू अ वुमन और शोइंग ऑफ द बॉडी पार्ट टू अनदर सेक्स, तो दैट थिंग कम्स अंडर द क्रिमिनल लॉ। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन सेक्सुअल हैरासमेंट जो कि थोड़े से लेसर ग्रेविटी के क्राइम है या कि केवल जेस्चर्स यूज हो रहा है या कोई किसी को देख के ऑप्शन गाने लगा, हालांकि सेक्शन 294 इज देयर इन द आईपीसी जहाँ पे कि जो ऑब्सनिटी के एक्ट है उनको भी पनिशेबल बनाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में कन्वेंशन जो 1979 का था, जिसको इंडिया ने भी 1993 में जो है रेटिफाई किया हुआ है, उसका सहारा लेते हुए इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट था दैट इज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन, वहां पर भी जो है डिफाइन किया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट को। और इन सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन से ट्रीटीज थे
इनको रेफर करते हुए सेक्सुअल हैरासमेंट को डिफाइन किया गया। तो जो सेक्सुअल हैरासमेंट है इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। एक है क्विड प्रो क्यू, दैट इज दिस फॉर दैट, कि अगर जो विमेन है उसके सामने किसी तरह की डिमांड रखी जा रही है कि तुम अगर ऐसा करोगी तो तुमको ये चीजें दी जाएंगी। इट मीन्स इफ यू आर कमिंग टू फॉर अ कॉफी और यू आर कमिंग फॉर शेयरिंग अ बेड और कमिंग टू अ पार्टी, that kind of allurement is given, and if the woman is being subjected or is forced to conform to that conduct, that is quid pro quo sexual harassment. और दूसरा होता है hostile work environment। तो इसको पहले ही 1984 में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन था, जिसमें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड किया गया था, वहां पे ऑलरेडी इसको डिफाइन किया गया था कि क्विड प्रो क्यू का क्या मतलब है और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट का क्या मतलब होगा। तो ये जो दोनों प्रकार की चीजें हैं, इनको सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पे जो है वो इंक्लूड किया गया। तो इसमें हम बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज वी हैव कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम। गोइंग फर्दर वी विल सी दैट what is POSH 2013? What is this Act of Protection of Women from Sexual Harassment at Workplace Act? So this is the India's first legislation which addresses the issue of harassment of women at workplace, and it was enacted by the Ministry of Women and Child Development. And later on in 2013 itself, the rules were also notified in order to make the act workable or implementable. So this year of 2013 is kind of a watershed where we had this act of POSH, as well as we had various criminal law amendments also, because certain new offences were created in the Indian Penal Code defining the sexual harassment. तो सेक्शन 354 के अलावा और भी सेक्शंस उसमें जोड़े गए, जो अभी हम लोग इसमें आगे भी बातें करेंगे कि उसमें फिर सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या है, स्टॉकिंग क्या है, वॉयरिज्म क्या है, डिसरोबिंग ऑफ वुमेन एट द पब्लिक प्लेस। तो इन सारे चीजों को भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंतर्गत ही रखा गया है। तो पॉश जो था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन 2013 का जो एक्ट है, इट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस, and it also ensures effective mechanism and redressal for dealing with the complaints of sexual harassment. So this particular act aims at providing every woman, irrespective of her age or in the employment status, a very, very safe, secure and dignified working environment which is free from all kinds of harassment, and it ensures the proper implementation of the provisions of the statute. So this so let us discuss the essential features of this act. So far this act is concerned, it applies to whole of India. So far this applicability is concerned, and after this repeal of 35A, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो चूंकि खत्म हो गया है, तो जो भी लॉ है अब वो पूरे ही इंडिया को अप्लाई करते हैं। तो जो 2013 का एक्ट है, हालांकि जो रिपील हुआ वो बाद में हुआ, लेकिन जब 2013 में इस एक्ट को अधिनियमित किया गया तो इसको पूरे इंडिया में जो है वो अप्लाई किया गया। और इसमें जो परिभाषा दी गई हुई है एग्रीव्ड वुमन की, कि कौन सी महिला है जो कि व्यथित वुमन होगी, यानी कि जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर रही होगी, उसको सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। और कहा गया है कि एन एग्रीव्ड वुमन मीन्स अंडर द एक्ट in relation to a workplace is woman of any age, whether she is employed or not. तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई महिला ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हो, अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रही है, अगर वो डोमेस्टिक वर्कर भी है, हमारे घर में जो डेली कामकाज के लिए महिलाएं आ रही हैं, अगर उनको भी किसी तरह की यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो डोमेस्टिक वर्कर्स को भी इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। तो उनके साथ अगर कोई गलत हरकत हो रही है तो वो उनको भी इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो रेमेडीज मिलेंगी। सो दिस डेफिनेशन डज नॉट नेसेसिटेट द वुमन टू बी एन एम्प्लॉई, इवन अ कस्टमर और द क्लाइंट who may be sexually harassed at the workplace can claim the protection of this Act of 2013. And now the important definition is that of workplace. What is the meaning of workplace? और इसको वर्कप्लेस को जानने से पहले ये भी जरूरी है देखना कि जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है। हालांकि इस बात को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और जो पॉलिसीज डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बन रही हैं वहां पे हैरासमेंट को जेंडर न्यूट्रल तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन जो ये 2013 वाला एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इसके अंतर्गत केवल महिलाओं को ही रिलीफ मिल सकता है
अगर वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का हैरेसमेंट हो रहा है। तो जो महिला है वो डोमेस्टिक वर्कर भी हो सकती है, रेगुलर एम्प्लॉय हो सकती है, टेम्परेरी वर्कर हो सकती है, एडहॉक हो सकती है, डेली वेजेस पे हो सकती है, फॉर रिम्यूनरेशन हो सकती है, विदाउट रिम्यूनरेशन हो सकता है, कहीं पे वो वॉलंटरी बेसिस पे ही काम कर रही हो तो अगर उसके साथ किसी तरह का हैरेसमेंट हो रहा है तो उसको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड थ्रू द एजेंट, ऐसा नहीं कि जहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा है वहीं पर भी, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भी बहुत सारा मैन पावर सप्लाई होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी जो है सप्लाई हो रही है, एजेंट के द्वारा सप्लाई हो रही है अगर विमेन वर्कर्स की, और उनको किसी तरह का हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है तो उनको भी इस एक्ट के अंतर्गत रेमेडीज मिलेंगी। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, प्रोबेशनर्स हैं, ट्रेनीज हैं और अप्रेंटिस हैं, उन सबको जो है इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो कवर किया गया है। अब कौन कौन सी बॉडीज हैं जिसको इसके अंतर्गत कवर किया गया है? इसमें ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज, ऑल द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, organizations which are carrying out a commercial, vocational, educational, entertainment, industrial, financial activities, hospital and nursing homes, educational institutions, sport institutions, and the stadiums which are used for the training of the individuals. And this also applies to dwelling place or a house. तो सेक्शन 2 क्लॉज ओ जो इसका है वो डिफाइन करता है कि कौन कौन सी बॉडीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल बॉडीज हैं या नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, वो सारी इस एक्ट के अंतर्गत कवर होती हैं और उन सबको इस तरह की पॉलिसी रखनी है कि वहां पे महिलाओं को सेफ और सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर दिया जाए फॉर द पर्पज ऑफ वर्क। अब ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट की क्या डेफिनेशन होगी? एज पर सेक्शन 2N ऑफ द पॉश एक्ट, तो सेम डेफिनेशन है जो कि विशाखा वाले केस में दी गई थी, सेम डेफिनेशन जो है वहां पर भी 2013 वाले एक्ट में भी रखी गई है। इसके अलावा जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 है वहां पे कुछ सर्कमस्टांसेस भी दी हुई हैं जो कि हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत आएंगी। तो अगर वर्क प्लेस पे इस तरह की परिस्थितियां हैं जहाँ पे कि महिलाओं को यौनिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है या किसी तरह के अनवेलकम जेस्चर्स का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी सेक्सुअल हैरासमेंट के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें भी एक लिस्ट दी हुई है सेक्शन 3 क्लॉज 2 में कि implied or explicit promise of preferential treatment in employment, implied or explicit threat of detrimental treatment in employment, or threat about present or future employment status, interference with work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment, or humiliating treatment which is likely to affect the lady employee's health or safety। तो इसके अंतर्गत जो हमने देखा जो 1984 का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसी के हिसाब से यहाँ पर भी दोनों ही तरह के हैरेसमेंट को इंक्लूड किया गया है। क्विड प्रो क्यू यानी कि दिस फॉर दैट, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा या आपको हायर पैकेज मिलेगा या आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो इस तरह की चीजें भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा इस तरह का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट अपने बिहेवियर के द्वारा क्रिएट करना, जेस्चर्स के द्वारा, जहाँ पे कि महिलाएं जो है वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं और जहाँ पे उनकी अगर एक्सप्लिसिट तरीके से कोई एक्ट हो रहा है जहाँ पे उनको शारीरिक यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है या किसी तरह का मेंटल और इमोशनल ब्लैकमेलिंग उनकी हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। तो एक केस है इसमें इम्पोर्टेंट 2009 का, डॉक्टर पुनीता सोधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट थी उसने ये कहा कि द सेक्सुअल हैरासमेंट इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है और यहाँ पे जो इस तरह की अपब्रिंगिंग है वहाँ पे जो पुरुष का बिहेवियर है, कभी इसको लगता है कि जो हम ये कह रहे हैं या हमारा जो ये एक्ट है या हमारे जो ये शब्दों का इस्तेमाल है ये ऑफेंडिंग नहीं है, बट जो वुमन है उसको वो ऑफेंडिंग लग सकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो कि वो सब्जेक्टिविटी इसके अंतर्गत है। तो men who are rarely victim of sexual assault, these are the words of the Delhi High Court. It said that men who are rarely victim of sexual assault may view sexual conduct in a vacuum without a full appreciation of the social setting or the underlying threat of violence that a woman may perceive. तो महिलाओं का जो दृष्टिकोण है किसी भी चीज को देखने का, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो पुरुषों से डिफरेंट होता है, नेचुरली भी होता है। तो पुरुष इस बात को ना समझे कि अगर वो चीज उनको बुरी नहीं लग रही है तो महिला को बुरी नहीं लग रही होगी। तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर बिहेवियर, देयर जेस्चर्स
and their conduct at the workplace so that they may not come in a tricky situation. तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है. अब एम्प्लॉय के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, तो दैट डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज F. So this definition is very, very wide definition because it includes both the regular, temporary and ad hoc employees and individuals who are engaged on a daily wage basis, either directly or through an agent, contract laborers, co-workers, professional trainees, with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, working on a voluntary basis or otherwise, whether the terms of employment are express or implied. So very wide definition of employee is given. The workplace definition is very, very important. That comes under section 2 clause O. So this POSH Act of 2013 uses the concept of extended workplace. यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो उसकी चाहत दीवारी ही केवल हमारा वर्क प्लेस नहीं होगी. अगर काम के सिलसिले में हमको कहीं बाहर जाना पड़ता है, अगर कोई मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए वेन्यू कोई और रखा गया है, या किसी क्लाइंट से मिलने के लिए हमें दूसरे शहर में भी जाना है, तो जो डेफिनेशन है वर्क प्लेस की वो एक्सटेंड हो जाती है. तो द डेफिनेशन इज एक्सटेंडेड, इंक्लूड्स एक्सटेंडेड वर्क प्लेस ऑल्सो. हेलो, क्वेश्चन आप बाद में ले लीजिएगा. लेट मी फिनिश माई प्रेजेंटेशन. POSH has introduced the concept of an extended workplace. So this workplace includes any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation provided by the employer for the purpose of commuting to and from the place of employment. यानी कि कोई गाड़ी अगर इंस्टीट्यूशन के द्वारा भेजी जा रही है एम्प्लॉय को लाने के लिए, और उस यात्रा के दौरान आने जाने के समय के दौरान भी अगर किसी तरह का हैरासमेंट महिला के साथ होता है, तो वो जो व्हीकल है वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगी. तो इन द केस ऑफ सौरभ कुमार मलिक वर्सेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि फॉलोइंग फैक्टर्स वुड बी बियरिंग ऑन डिटर्मिनिंग whether the act has occurred in the workplace or not. So it will include the proximity from the place of work, the control of the management over a place or the residence where the working woman is residing, and such a residence has to be an extension or contiguous part of the working place. So even the official mess where the employee was, in this particular case what happened, the employee was invited to a mess for the purpose of lunch etc. and there she was molested. तो अगर इस तरह से ऑफिस के दौरान, यानी कि टाइमिंग है ऑफिस की, उसके दौरान या ऑफिस के किसी काम से अगर भेजा जा रहा है महिला को, जो वर्क प्लेस है उसके अलावा भी कोई अगर स्थान है, तो वो स्थान भी, वो व्हीकल भी जिसके द्वारा उस महिला को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या भेजा जा रहा है, तो दैट ऑल्सो कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस. So these were the important terms under the act. And now what is the mechanism under the act for the implementation of the provisions? So we all know about the complaint committees. I know that in your institution also there will be a committee. So important feature of this act is that there is a redressal mechanism in the form of internal committee as well as a local committee. पहले जो internal committee था इसका नाम था 2016 से पहले ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी, लेकिन 2016 के बाद कंप्लेंट वर्ड उसमें से हटा दिया गया है. नाउ इट इज टू बी इंटरनल कमेटी एंड द लोकल कमेटी. सो एट ईच ऑफिस ऑफ द ब्रांच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 10 or more employees to hear and redress the grievances pertaining to sexual harassment, there shall be a internal committee. And if any body or the branch of the office fails to constitute this internal committee, then the fine will be imposed on the employer under section 18 of the act. तो हर इंस्टीट्यूशन के लिए और उसके जो ब्रांच ऑफिसेस हैं या सब्सिडियरी ऑफिसेस हैं, उन सब जगह पे एक इंटरनल कमेटी बनाना जरूरी है, जहाँ पे कम से कम 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हों. और अगर इस तरह की कमेटी नहीं है, इनकी एब्सेंस है, तो उसको पनिशमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, उसको ऑफेंस माना गया है. अब इस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? तो सबसे पहले तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा जिसको कि महिला होना चाहिए, और वो जो महिला होगी वो
कोई सीनियर मेंबर होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या और कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उन सभी में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो महिला ही होगी और किसी सीनियर पोजीशन पे वो होगी। उसके अलावा 2 अन्य मेंबर्स होंगे एम्प्लॉयज में से ही, who will be preferably committed to the cause of women or who has the experience of working on the women issues or maybe having the legal knowledge। तो ऐसे 2 मेंबर्स होंगे जिनको या तो लॉ की नॉलेज हो या महिला के मुद्दों पे उन्होंने काम किया हो या वो महिला के इश्यूज के ऊपर सेंसिटिव है। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में से 2 और महिलाएं जो है वो मेंबर होंगी। इसके अलावा एक जो है वो एक्सटर्नल मेंबर होगा जो कि किसी एनजीओ से होगा या किसी और एसोसिएशन से होगा विच इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन एंड शुड ऑल्सो बी फैमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू द सेक्सुअल हैरासमेंट। तो कोई एक जो होगा वो बाहर से होगा जो कि प्रेफरेबली कोई एनजीओ से होगा या किसी और एसोसिएशन से होगा जो कि महिला मुद्दों पे काम कर रहा होगा। एंड देन हाफ ऑफ द मेंबर्स नीड टू बी विमेन एंड द टर्म फॉर दिस इंटरनल कमिटी विल बी ऑफ 3 years। और जो कोरम है किसी भी केस को जो है सुनने के लिए, अगर कोई मुद्दा आता है आईसीसी के सामने हैरेसमेंट का, तो कम से कम वहां पे 3 मेंबर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड दे हैव टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग द इंक्वायरी। तो अगर 3 लोगों से कम नंबर के लोग हैं अगर कमेटी में, उनके द्वारा अगर कोई केस सुना जा रहा है तो वो केस वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो मिनिमम कोरम है कमेटी का किसी भी सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस को सुनने के लिए, कम से कम 3 लोग होने चाहिए उसमें, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 2 अदर मेंबर्स। और अभी 2019 में तेलंगाना में और मुंबई में अभी कंपल्सरी कर दिया गया है कि जो आईसीज हैं, जो इंटरनल कमेटीज हैं, उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया जाए आइदर विद द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर जो एक ई कंप्लेंट बॉक्स है दैट इज नोन बाय शी बॉक्स दैट हैज बीन फ्लोटेड बाय द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उस शी बॉक्स में उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। तो अभी अदर स्टेट्स के लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इन 2 स्टेट्स में ये कंपल्सरी हो गया है कि जितनी भी जो इंटरनल कमेटीज हैं वो सब अब रजिस्टर्ड होंगी मिनिस्ट्री के साथ या फिर जो शी बॉक्स है उसके साथ। अब इस इंटरनल कमेटी के अलावा कुछ लोकल कमेटीज की भी बात की गई है। तो जो लोकल कमेटीज हैं वो होंगी जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे महिलाएं काम कर रही हैं उस तरह की, या जहाँ पे 10 लोगों से कम व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं, या जहाँ पे कंप्लेंट जो है वो एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट है। तो जहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है वहाँ पे इंटरनल कमेटी जो है उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, वहाँ पे जो लोकल कमेटी होगी वही उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ऐसी संस्थाएं जहाँ पे 10 लोगों से कम व्यक्ति काम कर रहे हैं या जहाँ पे जो कंप्लेंट ऑफ हैरेसमेंट है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, वहाँ पे लोकल कमेटी जो है वो मैटर को देखेगी। अब जो लोकल कमेटी है उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें भी एक चेयरपर्सन होगा जो कि एमिनेंट वुमन होगी फ्रॉम द फील्ड ऑफ सोशल वर्क कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन। देन लोकल विमेन होंगी एंड वन ऑफ द मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द वुमेन वर्किंग इन द ब्लॉक, तालुका, तहसील और वार्ड और म्यूनिसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। एंड देयर विल बी 2 members of NGOs also, out of which at least one shall be a woman to be nominated from an NGO or an association which is committed to the cause of women or who is a person familiar with the issues of sexual harassment. And at least one of the members should have the background of law. And at least one जो local committee है उसमें एक तो legal expert का होना जरूरी है, दूसरा one member should belong to the scheduled caste or the scheduled tribe. एंड जो डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ विमेन है उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकल कमेटीज में होना चाहिए। अब जो पावर्स क्या हैं, जो ये इंटरनल कमेटी है और जो लोकल कमेटीज होंगी इनकी पावर्स क्या होंगी। सेक्शन 11 क्लॉज 3 से दैट दिस कमिटीज शैल हैव द पावर ऑफ इंक्वायरी इनटू द केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड दे विल हैव द सेम पावर एज दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो जो सिविल कोर्ट है उसकी ही पावर जो है वो सारी पावर जो है वो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास होंगी। तो वो कौन सी पावर होती है, वो होती है गिविंग द समन और इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और एग्जामिनिंग ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर मैटर विच में प्रिस्क्राइब।
यानी कि सम्मन भेजना, नोटिस इशू करना, लोगों के अटेंडेंस मैंडेटरी बनाना, उनसे एविडेंसेस लेना, विटनेसेस को जो है वो एग्जामिन करना, जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है हैरासमेंट से, जो भी प्रूफ होगा, उन सारी चीज़ों को लेना। तो यहाँ पे जो इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, वो इसी तरीके से काम करेगी जैसे कि कोई सिविल कोर्ट जो है वो काम करती है। तो सिविल कोर्ट की जो पावर है वो सेम पावर जो है वो इन कमेटीज को भी दी गई है। अब कंप्लेंट का मैकेनिज्म क्या है, कंप्लेंट कब दी जाएगी, व्हाट इज द टाइम, वेदर देयर इज अ लिमिटेशन फॉर दैट। तो जब भी हैरेसमेंट हुआ है, केस ऑफ हैरेसमेंट, उसके 3 महीने के अंतर्गत जो है वो कंप्लेंट जो है फाइल कर देनी चाहिए। और अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, लगातार कहीं पे हैरेसमेंट होता आ रहा है, तो फ्रॉम द लास्ट इंसिडेंट द 3 months पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द लास्ट इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। तो जहां भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उसके 3 महीने के अंतर्गत शिकायत दर्ज करानी है। और जहां पे लगातार हैरेसमेंट के केसेस हो रहे हैं, वहां पे जब लास्ट इंसिडेंट है वहां से 3 महीने का पीरियड जो है वो काउंट होगा। और जो मैकेनिज्म है, इट हैज टू बी फास्ट ट्रैक्ड ऑल्सो। तो एक टाइमलाइन भी इसके अंतर्गत दी हुई है कि कब कैसे जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर महिला स्वयं में समर्थ नहीं है, अगर वो स्वयं कंप्लेंट नहीं कर सकती है, तो कोई उसका फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोवर्कर, कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, वो भी जो है वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकता है। और जहाँ पे PWDs विमेन है, विमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ फिजिकल और द मेंटल इनकैपेसिटी और वेयर द एग्रीव्ड वुमन हैज डाइड, वहां पर भी कोई और व्यक्ति भी कंप्लेंट जो है उसकी तरफ से कर सकता है। तो कोई इसमें मॉडल नहीं दिया हुआ है, कोई मॉडल प्रोफार्मा नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से कंप्लेंट जो है वो दायर की जाएगी। लेकिन अगर हम लोग एक मॉडल डिस्कस करना चाहें कि किस तरीके से कंप्लेंट जो है वो ड्राफ्ट की जानी चाहिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स वी कैन कीप इनटू माइंड कि जब हम लोग कोई रिप्रेजेंटेशन अपना दे रहे हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, इट शुड बी एड्रेस टू द IC मेंबर्स एंड नॉट टू द एम्प्लॉयर और टू द HR रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी महिला कंप्लेंट दे रही है सेक्सुअल हैरासमेंट की, उसको वो एप्लीकेशन IC की जो चेयरपर्सन है उसको ही एड्रेस करना चाहिए। एंड द कंप्लेंट शुड बी वेरी वेरी कंसाइज, इट शुड बी रिटन इन द सिंपल लैंग्वेज which can be understood easily, and it should be well written and with proper credibility। तो उसमें झूठ वगैरह ना लेकर के, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं, जैसा इंसिडेंट हुआ है उसी इंसिडेंट को सिंपल भाषा में जो है वो एक्सप्लेन किया जाए। कभी कभी देखा जाता है कि कभी कोई शिकायत कर रहा है तो उसमें 4 शिकायतें और जोड़ दी जाती हैं और उसमें जड़ दी जाती हैं, ताकि उसको मैटर को और जो है वो सीरियस जो है वो बनाया जा सके। तो ऐसा ना करके, क्योंकि जो एक्ट है उसके अंदर का सजा का भी प्रावधान है। अगर वेक्सेशियस कंप्लेंट है या फ्रिवलेस कंप्लेंट है या फॉल्स कंप्लेंट है, तो यहाँ पे महिलाओं को उसका दंड भी भुगतना पड़ सकता है। तो सोच समझ करके जो भी इंसिडेंट हुआ है तो उसको सही तरीके से जैसा भी हुआ है सिंपल लैंग्वेज में उसकी ड्राफ्टिंग की जाए। देन डिटेल्स ऑफ द एग्जैक्ट इंसिडेंट, डेट एंड टाइम, और विटनेसेस, अगर कोई विटनेसेस है तो उसको भी उस शिकायत पत्र के अंतर्गत दायर किया जाए कि इस वक्त ये व्यक्ति मौजूद था जिसके समक्ष ये घटना जो है वो घटी है। देन ऑल द सर्कमस्टांसेस प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग द इंसिडेंट आर टू बी रिकॉर्डेड, कि जिस वक्त वो घटना हुई उसके पहले के क्या हालात थे, उसके बाद क्या हालात उत्पन्न हुए, इन सारी चीजों को भी उसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। एंड जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगाने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे, वो भी सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगाए जाएं, चाहे वो ईमेल हो या SMS के स्क्रीनशॉट्स हो या व्हाट्सएप के मैसेजेस हो, कॉल के डिटेल्स हो, फोटोग्राफ्स हो, किसी प्रकार के रिकॉर्डिंग है। तो जो भी एविडेंस आपके पास मौजूद है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ओरल एविडेंस हो या मोबाइल के थ्रू हो, उन सारे एविडेंसेस को भी उस शिकायत पत्र के साथ लगाया जाए, ताकि जो हमारी कंप्लेंट है वो हमको ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर पाए। देन डिटेल्स ऑफ द रिस्पोंडेंट इंक्लूडिंग हिज नेम, डेजिग्नेशन, रिपोर्टिंग द स्ट्रक्चर बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द रिस्पोंडेंट, कि क्या रिलेशन है। कभी कभी लोग ये समझते हैं ना कि जो जूनियर है वो हैरेसमेंट नहीं कर सकता, केवल सुपीरियर बॉस के द्वारा ही हैरेसमेंट हो सकता है, तो ये बात सही नहीं है। तो वास्तव में क्या रिलेशन है बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड द प्लेंटिफ, उसको भी मेंशन किया जाना चाहिए कि कोई सबऑर्डिनेट है, कुलीग है या सुपीरियर है। तो इस तरह का जो रिलेशन है हैरेसर के बीच में और जो विक्टिम है, उसको भी मेंशन किया जा सकता है। So proper care has to be taken that no wrong fact or incorrect facts are included, and
लास्टली द रिलीफ शुड ऑल्सो बी मेंशन, कि आपको उसमें क्या उपचार जो है वो चाहिए, किस तरह से आप चाहती हैं कि जो आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हुई है, तो उससे संबंधित क्या उपचार आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या आशा कर रही हैं, उसको रेमेडी के तौर पे आप उसको भी लिखा जा सकता है। अब जो एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट तो हो गई, कंसिलिएशन का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसा नहीं कि जब आईसी के पास, इंटरनल कमेटी के पास कोई मैटर आएगा तो तुरंत उसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर ऐसा लगता है कि बातों से सुलझाया जा सकता है, आपसी बातचीत से मैटर सुलझ सकता है, तो पहले कंसिलिएशन का भी प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो जो सेक्शन 10 है, इट टॉक्स अबाउट द कंसिलिएशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीड वुमन। जब महिला रिक्वेस्ट करेगी तभी उसकी रिक्वेस्ट पर ही कंसिलिएशन जो है वो किया जाएगा, यानी कि आमने सामने हैरेसर और विक्टिम को बैठा के बातचीत की जाएगी ताकि एक एमिकेबल सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। एंड इट इज बेसिकली एन इनफॉर्मल मेथड। और इस तरह से जो कंसिलिएशन होगा, जो बातचीत होगी, जो समझौता होगा, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होगी कि वो बार्गेनिंग हो जाए कि तुम इतना पैसा दे दो तो इस तरह से केसेस से छूट जाओगे। तो मनीटरी सेटलमेंट शुड नॉट बी मेड अ बेसिस फॉर द कंसिलिएशन, ये एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। एंड वंस द सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एट, द आईसी और द एलसी shall record the settlement arrived at and will provide the copies of the settlement to the agreed woman and to the respondent। तो अगर बातचीत के तरीके से कंसिलिएशन और मीडिएशन के द्वारा अगर चीजें सुलझ जाती हैं तो उन चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाया जाएगा, रिटन फॉर्म में, और उसकी कॉपी जो है वो दोनों ही पक्षों को दी जाएगी ताकि जो सेटलमेंट हो गया है वो फिर दोबारा से ओपन ना हो। तो वंस अ सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड एट, द आईसी शैल नॉट प्रोसीड विद एन इंक्वायरी अंडर द पॉश एक्ट। तो अगर सेटलमेंट हो गया है तब इस अधिनियम के अंतर्गत केस आगे नहीं चलाया जाएगा। तो टाइमलाइन दे रखी है कि शिकायत जो है वो 3 महीने के अंदर कर दी जाएगी, और जो शिकायत की कॉपी है वो रिस्पोंडेंट को 7 दिन के अंदर जो है वो मिल जानी चाहिए, विद इन द 7 डेज। और 7 दिन के बाद उसका जो अगला 10 दिन है उसके अंदर जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिपक्ष है, जिसके ऊपर चार्ज है, जो हैरेसर है, उसको अपना पक्ष विद डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना है। और जो इंक्वायरी का भी टाइम फिक्स है कि 90 डेज में इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए आईसी और एलसी के द्वारा। और फिर द इंक्वायरी रिपोर्ट हैज टू बी इशूड विद इन द 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, यानी कि 90 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसकी कॉपी 10 दिन के अंतर्गत पक्षों को दे दी जानी चाहिए। और अगर कोई संतुष्ट नहीं है आईसी के डिसीजन से या एलसी के डिसीजन से, तो उसके खिलाफ जो है वो अपील भी हो सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो हाई कोर्ट वगैरह में उसके आगे जो है वो अगर संतुष्ट नहीं है जो भी इंक्वायरी के बाद डिसीजन दिया गया है कमेटी के द्वारा, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा द एक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सर्टेन एंटरिम रिलीफ्स ऑल्सो, कि केस चल रहा है लेकिन उसके बीच में ही अगर किसी तरह की रिलीफ दी जानी है महिला को तो वो भी दी जा सकती है ड्यूरिंग द व्हेन द इंक्वायरी इज ऑन। तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट, द आईसी और द एलसी में रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एंटरिम मेजर्स सच एज द ट्रांसफर ऑफ द एग्रीड वुमन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस। तो अगर महिला चाहती है कि वो वहां पे नहीं रहना चाहती है, किसी और जगह पे इसको भेज दिया जाए, अगर कोई ब्रांच ऑफिस है या सब्सिडियरी ऑफिस है या किसी और शहर में उसका जो है वो एक्सटेंडेड वर्क प्लेस है, तो वहां पे उसको भेज दिया जाए। तो रिस्पोंडेंट का भी ट्रांसफर किया जा सकता है एट द रिक्वेस्ट, और एग्रीड वुमन का भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड द लीव में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द एग्रीड वुमन अप टू द पीरियड ऑफ 3 months in addition to her regular statutory or the contractual leave entitlement। तो जो उसको नौकरियां मिल रही हैं, जिसको वो एंटाइटलमेंट है, उसके अलावा भी उसको 3 महीने की छुट्टी दी जा सकती है। इसके अलावा द रिस्पोंडेंट कैन बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीड वुमन और राइटिंग हर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो अगर बॉस है, अगर उसको उसकी वर्क रिपोर्ट देनी है जिसके खिलाफ हैरेसमेंट वगैरह हुआ है, तो उसके खिलाफ रेस्ट्रेंट ऑर्डर भी इशू हो सकता है कि वो जब तक ये इंक्वायरी ऑन है वो इस तरह का कोई भी अपनी जो अप्रेजल रिपोर्ट वगैरह है वो सबमिट नहीं करेगा विक्टिम के अगेंस्ट में। सो दीज काइंड्स ऑफ एंटरिम रिलीफ्स कैन बी गिवन टू द एग्रीव्ड पार्टी। नाउ देयर आर पनिशमेंट एंड कंपनसेशन प्रोविजंस आल्सो। The punishment that may be imposed by an employer or employee for indulging in an act of sexual harassment is as per the service rules of the organization। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने जो है वो सर्विस रूल्स होते हैं, अपने एक्ट एंड स्टैट्यूट होते हैं, तो उसमें भी एम्प्लॉयज के खिलाफ जो भी पनिशमेंट प्रोविजंस हैं उसको ही सजेस्ट किया जा सकता है।
And if the organization does not have the service rule, then the disciplinary action can be written apology, warning, reprimand, censure, withholding of promotion, withholding of any pay rise or the increment, terminating the respondent from the services, or undergoing a counseling session, or carrying out the community service. तो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्लेस है, एक्ट एंड स्टैट्यूट है, तो उसके हिसाब से जो है वो एक्शन लिया जाएगा रिस्पोंडेंट के खिलाफ. अगर ऐसा नहीं है तो उसे लिखित रूप से माफी मंगवाई जा सकती है, उसको कम्युनिटी सर्विस में लगाया जा सकता है, उसको कुछ दिनों के लिए काम पे आने से बैन किया जा सकता है, या बहुत ही सीरियस केस है तो उसको नौकरी से निकाला भी जा सकता है. तो इस तरह के जो है वो पनिशमेंट के प्रोविजन जो है वो लिए जा सकते हैं. देन डिडक्शन ऑफ कंपनसेशन पेबल टू द एग्रीड वुमन फ्रॉम द वेजेस ऑफ द रिस्पोंडेंट. तो जो तनख्वाह मिल रही है हैरेसर को, रिस्पोंडेंट को, उसकी तनख्वाह काट करके जो कंपनसेशन है वो विक्टिम वुमन को दिया जा सकता है. सो दिस पॉश एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कंपनसेशन. अब कंपनसेशन जो है महिला को वो किस आधार पर दिया जाएगा. द कंपनसेशन कैन बी गिवन फॉर द मेंटल ट्रॉमा और द पेन, सफरिंग और द इमोशनल डिस्ट्रेस विच इज कॉज टू द एग्रीड वुमन. तो केवल जो फिजिकल लॉस हो रहा है उसके लिए ही कंपनसेशन नहीं है, जो उसके डिग्निटी का लॉस हुआ है, जिसको हैरासमेंट हुआ है, जो इमोशनल उसको एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उन सारी चीजों को एक्सेस करके भी कंपनसेशन दिया जाएगा. एंड इफ देयर इज अ लॉस इन कैरियर अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, if certain medical expenses have been incurred by the victim for the physical or the psychiatric treatment, the income and status of the alleged perpetrator. तो compensation इन सारी बातों के लिए दिया जाएगा depending upon what is the paying capacity of the respondent. तो उसकी भी कैपेसिटी देखी जाएगी कि वो कितना पे कर सकता है. और जो compensation है वो लमसम अमाउंट भी हो सकता है या इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है. And in the event that the respondent fails to pay the compensation, then IC may forward the order for the recovery of the sum as an arrear of the land revenue to the concerned district officer. तो इस हद तक इसमें पनिशमेंट और कंपनसेशन का प्रावधान जो है वो किया गया है. अब अगर किसी महिला ने कोई गलत कंप्लेंट करी है, फ्रिवुलस कंप्लेंट है, कुछ में गंभीरता नहीं है, तो उसके लिए सेक्शन 14 जो है वो प्रावधान करता है. तो इसमें इस तरह के प्रोटेक्टिव प्रोविजंस हैं सो दैट the provisions of the act are not misused. तो अगर गलत चार्जेस लगाए गए हैं, जो चार्जेस इंक्वायरी में अगर सही नहीं पाए जा रहे हैं, तो वहां पर फिर पनिशमेंट भी हो सकता है. तो इसमें क्या पनिशमेंट हो सकता है, एक तो जो अगर सर्विस रूल के हिसाब से ही होगा, जो भी वहां पे पनिशमेंट प्रोविजन अगर नहीं है, तो जैसे कि पहले बताया गया कि माफी मंगवाई जा सकती है इन राइटिंग में, उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसके प्रमोशन को रोका जा सकता है. तो जो रिस्पोंडेंट के लिए जो सारी पनिशमेंट के प्रावधान है वही सारे प्रावधान विक्टिम के लिए भी होंगे अगर उसने गलत तरीके से अपने केस को रिप्रेजेंट किया है. बट दिस एक्ट क्लैरिफाइज दैट मेयर इनएबिलिटी टू सब्सटेंशिएट अ कंप्लेंट और प्रोवाइड एडिक्वेट प्रूफ नीड नॉट मीन दैट द कंप्लेंट इज फॉल्स और मैलिशियस. तो अगर कोई महिला जो है वो सफिशिएंट प्रूफ नहीं दे पा रही है, चार्ज तो उसने लगाया और चार्ज अगर सही भी है, लेकिन अगर वो विटनेसेस अगर जो है वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, उन सब की वजह से अगर केस आगे नहीं चल पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उसकी जो शिकायत थी वो गलत शिकायत थी. तो इस तरह के सेफ्टी प्रोविजन भी एक्ट के अंतर्गत रखे गए हैं. फिर द राइट टू प्राइवेसी इज टू बी रेस्पेक्टेड एंड फॉर दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजंस आर देयर अंडर सेक्शन 16. क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो सुनवाई भी होती है, इंक्वायरी भी जो होती है बहुत ही क्लोज प्लेस पे होती है. तो जो इंस्टीट्यूशन है उनको चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी पूरी तरीके से मेंटेन करके रखें. तो जितने भी आईसी के मेंबर हैं उन सबको जो भी मीटिंग्स में डिस्कशंस हो रहे हैं उसको कहीं पर भी उनको डिस्क्लोज नहीं करना है, नहीं तो दे विल इनवाइट द पेनाल्टीज फॉर देमसेल्फ. तो अगर आईसी ने जो है वो एज पर द प्रोविजंस काम नहीं किया है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं किया है, उसका ब्रीच किया है, तो उसके लिए पनिशमेंट प्रावधान भी हो सकते हैं. इसके अलावा इस तरह के केसेस में जो है वो आरटीआई भी नहीं मांगी जा सकती है कि इंक्वायरी का क्या स्टेटस है, किस स्टेज पे चल रही है, किस तरह का एक्शन लिया जाना है. तो इस तरह की कोई आरटीआई भी जो है वो नहीं मांगी जा सकती है. सो दिस पॉश एक्ट disallows the dissemination of any kind of information pertaining to the justice that has been secured to the victim of sexual harassment without लेकिन बाद में अगर केस जब सॉल्व हो गया है, जब उसका रिजल्ट आ गया है, तब उसके बाद उसको दिया जा सकता है. बट देयर ऑल्सो द कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी मेंटेन. तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे नाम और पता वगैरह डिस्क्लोज किया जाए.
तो confidentiality has to be maintained under the act. Then if the lapses are there, if the things have not proceeded as per the provisions of the act, then there are consequences for the non-compliance. तो अगर आईसीसी ने और आईसी ने अपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इंक्वायरी कर ली, अपनी रिपोर्ट भी दे दी है और मेजर्स भी सजेस्ट कर दिए हैं कि किस तरह का एक्शन लिया जाना है, बट इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू constitute an IC or does not comply with the requirement prescribed under the act, a monetary penalty of 50,000 rupees may be imposed. तो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, अगर उन्होंने एज पर प्रोविजन जो है वो एक्ट नहीं किया है, कमेटीज बनानी है, कमेटीज नहीं बनाई है, प्रॉपर तरीके से कमेटीज नहीं बनाई है, या जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उसका फॉलो नहीं किया है, या कमेटी के जो डिसीजंस वगैरह हैं उनको अगर वो नहीं वो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, तो उसके लिए पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है. एंड अ रिपीटेशन ऑफ द सेम ऑफेंस कैन रिजल्ट इन द पनिशमेंट विच कैन बी डबल्ड और द एंटिटी कैन बी डी रजिस्टर्ड और डी रिकॉग्नाइज्ड. तो इस हद तक जो है वो पनिशमेंट के प्रावधान हो सकते हैं. एंड इवन द लाइसेंसेस कैन बी कैंसल्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस. तो इस तरह के जो पेनाल्टी प्रोविजंस हैं फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, they are given under section 26 of the act, and section 27 says that all the offences under this act are non-cognizable. Non-cognizable means they are not of very serious nature. Cognizable जहाँ पे 3 साल से ज्यादा की सजा होती है वो सब cognizable offences होते हैं and serious offences में आते हैं. But non-cognizable means होता है कि they are bailable offences as well as the कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. इसीलिए यहाँ पे कंसिलिएशन का भी प्रावधान जो है वो रखा गया है. तो दीज आर नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस नहीं है. देन इस एक्ट के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर है उसकी भी कुछ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होंगी. तो जो एम्प्लॉयर है उसको ये देखना है कि द प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर. तो वो इस बात पे पहले से ही इस तरह की सुरक्षा के प्रावधान रखे, इस तरह की पॉलिसीज जो HR की पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से बने कि वहाँ पे महिलाओं को वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ना हो, ताकि महिलाएं जो है डिग्निफाइड वे से काम करते हुए अपनी जीविका को चला सकें. तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो इसमें जो एम्प्लॉयर हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस हैं. सो द ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर इज टू प्रमोट अ जेंडर सेंसिटिव वर्क प्लेस एंड टू रिमूव द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग अ वर्किंग प्लेस hostile. And they should try to provide a safe working environment. They should formulate the internal policy and it should be widely circulated. And if anybody is joining new in the organization, then immediately the policies of that institution must be brought to the notice of that entrant also. तो और जो ये सेक्सुअल हैरासमेंट के अंतर्गत सेक्सुअल हैरासमेंट होता क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है, इसके पैम्फलेट वगैरह बनवा करके वो जगह जगह पे जो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस हैं, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे लोगों का ध्यान जाता है, वहाँ पे इस तरह के जो है वो पैम्फलेट वगैरह भी लगवाएं, ताकि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे लोगों को पता रहे कि अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो दे में इनवाइट द पनिशमेंट फॉर दैट. तो कुछ ये ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन जो है वो दे रखी हैं एम्प्लॉयर्स की. इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है इसके अंतर्गत हर इंस्टीट्यूशन को, कि हर साल उनके यहाँ कितने केसेस इस तरह के आए हैं मिसकंडक्ट के या सेक्सुअल हैरेसमेंट के. तो उसका सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि सरकार जो है वो समय समय पर उसकी रिपोर्ट जो है वो मांगती रहती है. तो इस तरह का डेटा भी जो है वो एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है कि इस तरह के डेटा को भी जो है वो बना करके रखे. तो टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट हैज टू बी सीन बाय द इंटरनल कमिटी ऑफ द हैरेसमेंट सेल. अब इसमें कुछ टिप्स हो सकते हैं कि कैसे जो हैरेसमेंट पॉलिसी है वो अच्छी हमारे इंस्टीट्यूशन में बने. तो सबसे पहला जरूरी है कि हम सेक्सुअल हैरासमेंट को डिफाइन करें. एंड क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे जो जेंडर पॉलिसी है वो जेंडर न्यूट्रल है. तो एक्ट तो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, केवल महिलाओं के खिलाफ ही ऑफेंसेस को लिया गया है. लेकिन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का हो सकता है कि कोई जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज भी बनाई जा सकती हैं और उसको भी पब्लिसाइज किया जा सकता है. एंड द एम्प्लॉयर कैन मेंशन हाउ द एम्प्लॉयर कैन प्रैक्टिस द zero tolerance policy toward the sexual harassment, and what is the concept of extended workplace, what is the complaint mechanism, and they should regularly distribute and promote the policy of the organization
at all the levels and all the policies should be equally easily accessible. तो जो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है वहाँ पे भी जो भी HR की पॉलिसी है उन सबको पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए. जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट है, जो रूल है, ये भी जो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है वो भी उसके ऊपर अपलोड होनी चाहिए ताकि वो लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो, लोगों को पता हो कि अगर जब हम काम करने आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें किस तरह के एटमॉस्फेयर में काम करना है. इसके अलावा हमें दूसरों को भी किस तरह का एटमॉस्फेयर देना है जिसमें कि वो भी हैरेस फील ना करें. देन ऑल द पॉलिसीज आर टू बी रिव्यूड पीरियडिकली एंड अपडेटेड एज पर द रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम. तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क एक्ट का. अब हम कुछ लोग कुछ इस तरह के केसेस भी ले सकते हैं कि केसेस के अलावा हम देख सकते हैं अदर प्रोविजंस क्या है. तो एक तो हमारे सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट हो गया 2013 का, जो कि स्पेसिफिक एक्ट है जिसके अंतर्गत महिलाएं जो वो सेक्सुअल हैरासमेंट के केसेस जो है वो डाल सकती हैं एज पर डेफिनेशन. इसके अलावा जो आईपीसी है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि पहले इसमें सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 509 एंड 294 ये पहले से प्रावधान थे 2013 से पहले. 2013 के बाद जो है वो कुछ नए जो है वो ऑफेंसेस जो है हमारी भारतीय दंड संहिता में ऐड किए गए हैं जो कि सेक्सुअल हैरासमेंट की कैटेगरी में आते हैं. तो जो सेक्शन 354 है दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. तो उसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए जो सजा है वो 5 साल तक की हो सकती है अलॉन्ग विद द फाइन. तो दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन का मतलब क्या है? assault or the use of criminal force to any woman intending to outrage or knowing that it will outrage the modesty of a woman. तो अगर जो पुरुष पक्ष है वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, यानी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या उसके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वेदर देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट और नॉट, तो वो सारी चीजें जो है वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी के अंतर्गत आती हैं और इट इज अ सीरियस ऑफेंस. इसके अलावा 354A जोड़ा गया 2013 में जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करता है और वो सेम परिभाषा है जो कि विशाखा वाले केस में 1997 में दी गई थी. लेकिन आईपीसी के अंतर्गत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है और यहाँ पे जो सजा है वो 3 साल की है विद फाइन और विदाउट फाइन. तो सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, साथ ही साथ फाइन भी देना पड़ सकता है. और जो कुछ कम ग्रेव नेचर्स के क्राइम है जहाँ पे जेस्चर्स वगैरह केवल जो है वो पोर्नोग्राफिक है, वहां पे सजा जो है 1 साल की है विद और विदाउट फाइन. तो अगर सीरियस ऑफेंस है तब तो वहां पे 3 साल या उससे ज्यादा की जो है सजा होगी विद और विदाउट फाइन और इट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. और जेस्चर्स वगैरह हैं तो वहां पे 1 साल की सजा है. देन सेक्शन 354B टॉक्स अबाउट द assault और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद एन इंटेंशन टू डिसरोब द वुमन, यानी कि महिला को निर्वस्त्र करना, उसके कपड़े उतरवाना, ये भी एक नया ऑफेंस ऐड किया गया 2013 में. इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड फॉर दिस द पनिशमेंट इज नॉट लेस देन 3 years एंड में एक्सटेंड टू 7 years विद फाइन. तो यहाँ पे जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 3 साल का है और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 7 साल का है. देन वोयरिज्म. वोयरिज्म क्या है? 354C में अगर महिला कहीं प्राइवेसी में है, कोई प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है, चाहे कोई सेक्सुअल एक्ट में प्राइवेटली विद कंसेंट किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो अगर उसका पिक्चराइजेशन करके, उसका जो है वीडियोग्राफी करके उसको पब्लिक में डिसेमिनेट किया जा रहा है, या फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग द नेचुरल कॉल शी इज देयर इन सम प्राइवेट स्पेस, उसका पिक्चराइजेशन करके अगर उसको जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं या दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज एन ऑफेंस एंड इज अ सीरियस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो अगर पहली बार इस तरह का ऑफेंस किया गया है तो इसमें जो सजा है वो मिनिमम 1 year की है बट मैक्सिमम ऑफ 3 years. लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है और इस ऑफेंस को बार बार रिपीट किया जा रहा है तो ये और भी ज्यादा सीरियस ऑफेंस है और यहाँ पे जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 3 साल का होगा और मैक्सिमम 7 साल का होगा. तो इस तरह के एक्ट अगर वर्क प्लेस पे किए जा रहे हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलावा आईपीसी के अंतर्गत भी केस दायर हो सकता है. देन अनदर ऑफेंस इज दैट ऑफ स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना, जिसको कि पहले बहुत ही नॉन सीरियस बात समझी जाती थी कि कोई महिला घर से ऑफिस आ रही है, ऑफिस से घर जा रही है, उसका लगातार पीछा करना है और केवल फिजिकली पीछा करना नहीं बल्कि मैसेजेस के थ्रू अनवांटेड अगर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, अनवांटेड ईमेल्स अगर भेजे जा रहे हैं तो इसको भी स्टॉकिंग की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है और ये भी एक सीरियस ऑफेंस है. और पहली बार अगर और महिला ने अगर क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि अगर उसको इस तरह के मैसेजेस पसंद नहीं है, इस तरह के ईमेल पसंद नहीं है, इस तरह की चीजें उसको मत भेजिए या उसका पीछा ना करिए,
और उसके मना करने के बावजूद भी अगर कोई उसका लगातार पीछा कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली, तो इट इज अ सीरियस ऑफेंस। और अगर पहली बार है तो पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 3 years और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में पनिशमेंट में इंक्रीज टू 5 years। तो इस तरह के जो नए ऑफेंसेस है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देन सेक्शन 509 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिगार्डिंग द इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। What is the meaning of insulting the modesty of a woman? Uttering any words, making any sound or gesture, or exhibiting any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by a woman with an intention to outrage her modesty or intruding upon the privacy of such woman. तो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आएंगे तो जब तक फिजिकली महिला को टच ना किया हो ये हैरेसमेंट की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। कोई अपने प्राइवेट पार्ट को अगर एग्जिबिट कर रहा है ना, अनवेलकम तरीके से, तो वो सारी चीज़ें भी 509 के अंतर्गत कवर होती हैं। और ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड द पनिशमेंट एंड एक्सटेंड टू अप टू 3 years। तो ये तो हो गई स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्पेसिफिक लॉज हैं। इसके अलावा जो जनरल लॉ है, जो IPC है, जो कि एंड ऑल दीज आर जेंडर न्यूट्रल लॉज। IPC इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ, तो इसके अंतर्गत केस दायर हो सकते हैं। बट जो ये वुमेन स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं इसमें केवल महिलाओं को ही रिड्रेसल मिलेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास किए हैं ताकि जो कार्य क्षेत्र है उसको महिलाओं के लिए सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके। तो इसके लिए जो शी वाला पोर्टल है दैट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और वहाँ पे जाकर के भी महिलाएं जो है कंप्लेंट दायर कर सकती हैं। क्योंकि कभी कभी महिलाओं को लगता है कि अगर ऑफिस में है तो वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो एक कंप्लेंट बॉक्स है शी बॉक्स, वहाँ पे जाकर के अपनी कंप्लेंट जो है वो दायर कर सकती है। एंड द एड्रेस फॉर दैट इज www.shebox.nic.in। तो वहाँ पे जाकर के अपनी कंप्लेंट दायर कर सकती है। और जो ये शी बॉक्स है इसमें जो मिनिस्ट्री के द्वारा भी इसका जो है वो फॉलोअप किया जाता है। और जो भी कंप्लेंट शी बॉक्स पे आती है उसको इंटरनल कमेटी को या जो लोकल कमेटी है उसको वहाँ पे ट्रांसफर की जाती है। तो वहाँ पे तो अपना प्रोसीजर चलेगा ही, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है वो भी केस का फॉलोअप रखती है। इसके अलावा शी बॉक्स पे जो भी मैटर डिसाइड हो जाते हैं उनको एज अ रिपोजिटरी भी यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप ऑल्सो। तो दैट मैटर कैन बी यूटिलाइज, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द वर्क प्लेस हैरासमेंट। तो ये सरकार की तरफ से भी प्रयास किए गए हैं कि महिलाओं को जो कार्यस्थल है वो किस तरीके से उनके लिए सेफ एंड सिक्योर बनाया जाए। तो जुडिशरी का जहाँ तक रोल रहा है, वी ऑल हैव सीन दैट फ्रॉम 1997 ऑनवर्ड्स जुडिशरी हैज टेकन अ वेरी वेरी लॉडेबल रोल सो फॉर मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ फॉर द वुमेन। विशाखा के केस से तो सभी लोग वाकिफ हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट केस था अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा का 1999 का, जहाँ पे पहली बार जो विशाखा की गाइडलाइन थी उसको जो है वो फॉलोअप किया गया उसका। देन केस 2012 का इम्पॉर्टेंट केस है मेधा कोतवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किए थे सारी यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो दे शुड ब्रिंग द लॉ इन प्लेस, क्योंकि तब तक लॉ जो है वो 2013 वाला एक्ट नहीं आया था। तो ये केस अब पुराने हो गए हैं, दीज आर ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। लेकिन अब एक्ट जो है स्पेसिफिक एक्ट है, उसके प्रावधान जो है वो लागू होने हैं। लेकिन इस एक्ट को लागू होने के बाद भी बहुत सारे जजमेंट जो है वो, तो एक लैंडमार्क जजमेंट था विद्या आखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था कि इसमें यह है कि अगर जो IC का डिसीजन है, जो इंटरनल कमेटी का डिसीजन है, तो उसके खिलाफ अगर अपील में जाते हैं तो हाई कोर्ट मे नॉट इंटरफेयर। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हुई है और जो भी रिजोल्यूशन आया है, जो भी एक्शन है वो अप्रोप्रिएट है, तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। हाई कोर्ट विल ओनली इंटरफेयर व्हेन इट फील दैट देयर आर शॉकिंगली डिसप्रपोर्शनेट मिसकंडक्ट बाय द इंटरनल कमेटी। तो हाई कोर्ट हर केस में इंटरफेयर नहीं करेगी IC की, यानी कि IC को जो है वो तो और LC है उसको फुल पावर दी गई है एज अ सिविल कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। तो जबरदस्ती किसी मैटर को ओपन करके अपील में नहीं लिया जा सकता, वहां पे वो केस रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हैरासमेंट, इसमें भी कोर्ट के अलग अलग तरह से जजमेंट रहे हैं। कोई जजमेंट ऐसे रहे हैं विच में बी क्रिटिसाइज्ड, जहाँ पे ये कहा गया कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए,
जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेकिंग द एनवायरनमेंट हॉस्टाइल दैट इज़ ऑल्सो सेक्शुअल हैरासमेंट। तो अगर किसी को प्रमोशन टाइम में नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ किस तरह की बार्गेनिंग की जा रही है या अदर तरीके से इम्प्लाइड तरीके से उसका हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हैरासमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो जो एक्ट का नाम है कि सेक्सुअल हैरासमेंट का ये मतलब नहीं है कि जब कोई किसी का सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है या रेप के केसेस हैं वही इसके अंतर्गत आएंगे, बट नॉन वर्बल जो चीज़ें, जो वर्बल एब्यूज़ है, जो वर्बल एक्सप्लॉयटेशन है या जो वर्बल थ्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के जो प्रमोशन है, उनका कैरियर है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, उसको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी सेक्सुअल हैरासमेंट के अंतर्गत आएंगी। तो बहुत सारे केसेस हैं, बट सिंस द टाइम इज शॉर्ट आई कैन नॉट मेंशन इट ऑल, बट आई कैन गिव यू द एड्रेस और द नेम ऑफ दैट बुकलेट वेयर यू कैन फाइंड these cases which will help you all in further training. अब इसमें कुछ एक दो मुद्दे और डिस्कस करने थे, बस जस्ट 5 मिनट्स मोर, कि जो सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटीज हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बनती हैं, तो ये होता क्या है कि एक्ट के अंतर्गत इनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का है। तो 3 साल के बाद इस कमेटी को चेंज करना होता है। तो जब कमेटी को चेंज किया जाता है, तो अभी एक्ट के अंतर्गत ऐसा प्रावधान नहीं है, ना कि विशाखा गाइडलाइन में ऐसी कोई प्रावधान थी कि पूरी कमेटी चेंज की जाएगी या कुछ मेंबर जो है वो चेंज किए जाएंगे। क्योंकि अगर पूरी कमेटी चेंज की जाती है तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जो पहले से केसेस चले आ रहे हैं उनमें वो कैसे प्रोसीड करे, क्योंकि उसका कुछ बैकग्राउंड उसको पता नहीं होता। तो इस बारे में अभी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि जो न्यू कमेटीज बनेंगी उसमें पुराने मेंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका टर्म रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऐसे कोई ग्रे एरियाज हैं जो कि अभी भी एड्रेस किए जाने इस एक्ट के अंतर्गत जरूरी हैं। इसके अलावा कभी कभी होता है कि जो आईसी के मेंबर्स होते हैं उनमें खुद ही में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपस में जेलसी होती है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको भी कैसे रिजॉल्व किया जाना है। तो इस बारे में भी एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, सौम्या गुप्ता वर्सेस जेएनयू, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इफ द राइट माइंडेड पर्सन वुड थिंक दैट देयर इज रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस ऑन द पार्ट ऑफ एन इंक्वायरिंग ऑफिसर, ही मस्ट नॉट कंडक्ट द इंक्वायरी। अगर किसी को खुद को लगता है कि वो बायस हो रहा है, फेयर तरीके से इंक्वायरी नहीं कर पाएगा, तो उसको आईसी से खुद से ही क्विट कर देनी चाहिए। तो जो भी आईसी के मेंबर है उनको जो है बायस फ्री होना चाहिए, दे शुड नॉट बी प्रेजुडिस्ड एंड दे शुड वर्क इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। देन अगर इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है आईसी मेंबर के द्वारा, कभी कभी क्या होता है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, लोगों को एक्ट की नॉलेज ही नहीं होती है, लोग उसको कभी कभी देखा गया कि जहाँ पे जो ये चेयरपर्सन हैं आईसी के, वो उनको लीगल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, क्यों सीनियरिटी के बेसिस पे उनको बना दिया जाता है, और वो लोग एक्ट को पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, और चूंकि लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता है, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग बिकॉज समटाइम्स द थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड। तो वहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, वर्कशॉप की बहुत ज़रूरत है। तो जो भी इस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम हो रहे हैं एक्ट के ऊपर, उन सबको जो आईसी के मेंबर होने वाले हैं या जो बने हुए हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग जो है वो कराई जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो दैट में विशिएट द इंक्वायरी एंड में ऑल्सो इन्वाइट द पेनाल्टी। तो रियलिटी अगर हम लोग ग्राउंड पे देखें तो यही है कि अभी भी महिलाएं हालांकि केसेस तो रिपोर्ट कर रही हैं, सामने भी आ रही हैं, लेकिन सारे केसेस में उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। और हम लोग खुद देख रहे हैं कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे काफ़ी प्रेशर होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि इन केसेस को किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ कराया जाए और कंसिलिएशन में इनको डाला जाए, तो फर्दर इसको आगे ना ले जाए। तो वहाँ पे कभी कभी महिलाओं को जो है वो न्याय भी नहीं मिल पाता। दैट्स व्हाई दे टेक द रिकोर्स टू अदर लीगल रेमेडीज। तो एक्ट तो बना हुआ है और अदर पार्ट फील दैट एक्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड women are also misusing the law. So but women have to take care that they are not coming forward with the frivolous or the vexatious report. They should utilize the act in the good sense. तो जहाँ पे रियल में प्रॉब्लम है, रियल में हैरेसमेंट हो रहा है, वहीं पे केवल केसेस को सामने लेकर के आए। और ये आईसी का बहुत ज़्यादा दायित्व है इंटरनल कमेटी का कि वो देखे कि वो कहते नॉन बायस तरीके से इंक्वायरी को कंडक्ट करा सकती है और जस्टिस जो है वो महिला को दिला सकती है, ताकि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ हो और वो अपने